Greetings everyone, welcome to your own channel, Akrishna Genius Lab. We are doing PYQs on chemical kinetics. Let's see question number 6 on your screen. The half-life period of radioactive element is 140 days. After 560 days में 1 ग्राम कितने में reduce हो जाएगा? 560 is 4 times 140 यानी कि 4 बार आपकी half life complete हो रही है. तो सोचो 1 से half से 1/4 से 1/16 से 1/32, right? तो इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो 1 ग्राम कितना reduce हो जाएगा? एक half life के बाद half, then 1/4, then 1/8, then 1/16. Can you mark the answer? Answer is D. Question number 7. The rate constant, the activation energy and the Arrhenius parameters are given. Basically, K given, E given है और आपको capital A, Arrhenius parameter given. The value of rate constant at T tending to infinity will be how much? अगर T infinity को tend करेगा तो K A को approach करेगा तो मेरा आंसर बन जाएगा सीधे 6 into 10 raised to power -14 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सीधे मार्क कर सकते हो. 6 into 10 power 14 कर लोगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. 13Al27 is a stable isotope. 13Al29 is expected to disintegrate by. 13Al29 से 13Al27 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? पहले इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. आपने लिखा अल्फा एमिशन. अल्फा एमिशन से क्या मैं 2 की वैल्यू बढ़ा पाऊंगा? इसमें दूसरा ऑप्शन है बीटा एमिशन. पॉजिट्रॉन एमिशन है, प्रोटॉन एमिशन. देखो जब भी बीटा एमिशन होगा -1 0 के साथ साथ 1 P1 निकल के आएगा. सो इफ यू वांट टू गेट 13Al29, राइट, उसमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं. सो बेसिकली दिस शोज बीटा एमिशन. ओके, बीटा एमिशन को शो कर रहे हैं. यू कैन मार्क द ऑप्शन अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन नंबर 9. The number of neutrons accompanying the formation of xenon strontium from the adsorption of slow neutron by 92 urine 235. बेसिकली न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात हो रही. कितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इस रिएक्शन से? आंसर होगा 3 न्यूट्रॉन्स. इसकी बैलेंस इक्वेशन आप सॉल्यूशन में देख सकते हो. आंसर इज 3 न्यूट्रॉन्स, राइट. अब इसकी मल्टीपल रिएक्शंस होती है. 3 न्यूट्रॉन्स भी हैं, 2 न्यूट्रॉन्स भी, तो आपको सारी रिएक्शंस आनी चाहिए. एक बार इसको प्लीज रिवाइज करिए. क्वेश्चन नंबर 10. The rate constant of a reaction 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 is given. If the rate is this, then the concentration of N2O5 is how much? तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? Rate equals rate constant into concentration of reactant, that is N2O5 power 1. वहां से क्या इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? तो आंसर हो जाएगा 2.4 10 power -5 divided by 3 into 10 power -5, which is ऑप्शन नंबर डी 0.8. सीधा एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, आपका आंसर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 11. If I is the intensity of absorbed light and C is the concentration of AB for the photochemical process, AB plus H2 gives AB star. The rate of formation of AB star is directly proportional to. देखिए किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेट किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? इंटेंसिटी I के, राइट, AB स्टार के करस्पॉन्डिंग. सो आंसर क्या होगा इसका? I. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में I के बराबर. क्वेश्चन नंबर 12. Consider the chemical reaction N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. The rate of this reaction can be expressed in terms of, simple है भाई, -1/1 dN2 by dt, -1/3 dH2 by dt, -1/2 dNH3 by dt. माइनस नहीं रखना, NH3 में पॉजिटिव कर देना. तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है मेरे को? Which option? ऑप्शन नंबर A. ठीक है, ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. First order reaction, the concentration of reactant decreases from 800 to 50 in this much time. The rate constant in second inverse is how much? क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आप? C equals C0 e power minus KT. 800 से 50 पे जा रहा हो तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 800 divided by 50 का log into 2.303 upon we can say T will be equal to K. इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर निकल के आएगा 1.386 10 power minus 4 second inverse. Question number 14. Na23 is a more stable isotope of Na. Na आपको पता है, राइट? Find out the process by which Na24 can undergo radioactive disintegration. N/P रेशियो निकाल के देखो एक बार जरा. N/P रेशियो अगर आप निकाल के देखोगे, N/P रेशियो of Na24 is 13/11, which is greater than unity. Hence it is radioactive. अब इसको अचीव करने के लिए क्या करेगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा, चेक ऑप्शन है बीटा माइनस एमिशन. ओके, -1 बीटा, सो बेसिकली -1 बीटा 0 जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको स्टेबलाइज करके यहाँ पे ला सकते हैं. ठीक है, पहले भी आप क्वेश्चन कर चुके इस पॉइंट. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीस क्वेश्चंस. इस चैनल को देखते रहिए बच्चों, और इस पे खूब सारे लाइक और सब्सक्राइब्स आपके चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.